हेलो फ्रेंड्स, क्या आप विटलिगो की सर्जरी कराने का सोच रहे हैं और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर्जरी क्या है, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है एंड लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस। इन सब का आंसर आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी एक सर्जरी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं एंड व्हाट आई वांट टू शो इन मोस्ट ऑफ माय केसेस, दिस इज द स्किन ग्राफ्ट एंड दीज आर द FUV सेल्स। आई कंबाइन बोथ ऑफ देम टुगेदर। इससे हमको जो सेल्स मिलते हैं मेलानिन सेल्स, वो स्किन डिराइव्ड होते हैं, जबकि जो हमको हेयर से यानी FUV सेल्स से जो सेल्स मिलते हैं वो मेलानिन काफ़ी स्टेम सेल में रिच होते हैं, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन ग्राफ्ट फ्रॉम द स्किन एंड फ्रॉम द हेयर टुगेदर गिव्स अस द बेस्ट रिजल्ट, good density and faster result compared to using one of them alone. That's why I'm combining these two techniques together in melanocyte transplantation cases. And today's cases are on the lips, so we'll be combining these two techniques together. You are seeing ये जो अभी हम कर रहे हैं, this is called micro punch and micro punch is used कभी-कभी जब हम acral areas पे काम करते हैं जहाँ पे pigmentation difficult होता है. So I combine this with blister grafting with melanocyte transplantation. So combination of punch grafting, that is not the normal punch grafting, but it is called micro punch grafting. It's still different from punch grafting. And also with blister grafting, melanocyte transplantation, इनका combination is used in acral areas because the response in acral areas is difficult. Acral vitiligo's are very difficult to treat. उनके results usually नहीं आते हैं. Melanocyte transplantation में इनका response rate रहता है. But आजकल हम combination of techniques use करते हैं. Where melanocyte transplantation को हम either with blister grafting और micro punch grafting के साथ combine करते हैं. Now micro punch grafting is different from punch grafting, क्योंकि punch grafting के अंदर cobblestoning, scarring एक बहुत बड़ा problem होता है. Compared to that micro punch grafting में, क्योंकि we take very small grafts, तो cobblestoning and scarring का जो problem है that is quite less. And also I try to combine it with the blister grafting. So blister grafting with punch grafting and melanocyte transplantation का combination हमें acral areas में एक decent का response दे सकता है compared to using one technique alone. So in the acral areas, I recommend कि हम multiple techniques को combine करें to optimize the result and to improve the results. This is what we are doing for a vitiligo of area around the lips called perioral vitiligo. यानी perioral vitiligo का ये हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं. इसमें मल्टीपल चीजें हमने यूज की हैं. पहले माइक्रो स्किन ग्राफ्ट्स किए हैं विद माइक्रो पंचेस. उसके ऊपर हमने ये मेलानोसाइट सेल्स क्रिएट किए हैं और FUV स्टेम सेल्स क्रिएट किए हैं जिसको हम अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं. इसके ऊपर बहुत थिन ग्राफ्ट, जो अल्ट्रा थिन ग्राफ्ट है, उसको हमने प्रिपेयर किया. उसके ऊपर एज अ बायोलॉजिकल लेयर हम कवर कर रहे हैं. आप देख रहे हैं सूचर्स जो हम लगा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिप्स के एरिया में बहुत मूवमेंट होती है. अगर मूवमेंट ज़्यादा होगा तो हमारी सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे. इसको इम्प्रूव करने के लिए
हम जब भी वहाँ पे ग्राफ्ट लगाते हैं या मेलानिन सेल लगाते हैं, वी ऑलवेज अप्लाई सूचर्स दैट वी टोटली इमोबिलाइज दैट एरिया, ताकि हमारा ग्राफ्ट अपटेक बेटर हो सके और हमारा पिगमेंटेशन बेटर हो। So in this case, we are doing here multiple things. This is the blister graft that we have put. This is the melanin cells that we are inserting. We have also put a few cells and also micrografts have been implanted. ये multiple सब चीजें इसमें हैं. This is all we are doing together. और सबसे important क्या है कि in the lip area movement बहुत होता है. Movement को रोकने के लिए we have to use this special sutures. You have to use the special sutures so that the graft does not get dislocated. अगर मूवमेंट होगा तो हमारे रिजल्ट पे बहुत बुरा असर आता है। तो कम से कम मूवमेंट करना, उसको इमोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। कैसे डिफरेंट मेथड्स को माइक्रो पंच ग्राफ्टिंग, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, एफयूवी सेल्स, इन सब को कैसे कंबाइन करते हैं इन अ सर्जरी स्पेशली फॉर एक्रोल एरिया। अगर इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं इन विट्लिगो सर्जरी, तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बेटर आते हैं एंड ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग होते हैं कंपेयर टू यूजिंग वन मेथड अलोन, जिसके रिजल्ट्स आइदर नॉट दैट ग्रेट और समटाइम दे आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी या विट्लिगो सर्जरी के बारे में कुछ भी आप अगर जानना चाहते हैं, तो ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किया जा रहा है, उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू एंड आंसर योर क्वेरीज।